Hello students, welcome back to our E-class St. Joseph's Academy, Class 1, Subject Mathematics, and the revision topic we will be covering today is revision number 12. So students, as you know that we are on our revision sessions and we are revising each and every topic from our course books for our final exams. Students, in our previous session, we did subtraction, addition, and so on, and we also did story sums related to them. Story sums are basically something which tells the story or any um, real life problem, and we have to solve it. So, this is the pattern we are following in our class. That's first of all, we will be covering and we will be discussing our previous class, and then we will move ahead with our today's topic. I am Anukriti Gupta, your mathematics teacher, will be guiding you for your revision sessions throughout. And let us start with our quick revision. And what is our quick revision? Students, आज हम रिवीजन पढ़ने वाले हैं. रिवीजन में हम लोग अलग अलग टॉपिक के रिवीजन कवर कर रहे हैं. सो टुडे हम लोग एक नया रिवीजन कवर करने वाले हैं, बट जो हम फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं वो ये कहता है कि हम पहले दिन का रिवीजन भी एक बार करेंगे जल्दी से, विच इज नोन एज क्विक रिवीजन, जो कि क्विक रिवीजन कहलाता है. सो वी विल बी कवरिंग दैट फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट एंड मूव अहेड विथ आवर टुडेज रिवीजन. लेट अस स्टार्ट विथ आवर quick revision. So in quick revision we have story sum. So this is just the worksheet in which I explained how to solve a question or what do you mean by story sum. So first of all you need to know what is the meaning of story sum. Story sum is basically a real life problem which needs to be solved, and if we need to solve it, it can be solved in addition or subtraction. Either we need to add or we need to subtract. In story sums, there are few sentences by which we get to know the numbers, the numerals, and then we move ahead with our sum. So the problem is basically in the story sum, we have to solve it. स्टूडेंट्स, स्टोरी सम्स बेसिकली क्या होते हैं? एक रियल लाइफ प्रॉब्लम मीन्स जो आजकल हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम जो लाइफ में हमारे होती है उसके लिए उससे रिलेटेड होती है, और उसमें हमें कोई भी सम दिया जाता है एंड वी हैव टू सॉल्व इट. रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे भी हो सकती है. सपोज यू हैव 9 बनानास, आपके पास 9 बनानास थे एंड यू डिस्ट्रीब्यूटेड 6 बनानास, और आपने 6 बनानास डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किसी को दे दिए, ठीक है. एंड नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी लेफ्ट. अब कितने बच गए? लेफ्ट मीन्स बचना, दैट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. यू कैन सब्ट्रैक्ट 6 from 9. 9 minus 6 is, yes, very good, you can answer it. 9 minus 6, you can take out 9 fingers. Okay, come on everyone, take out your 9 fingers. Now you have to subtract 6. 6 minus करना है आपको, so fold your 6 fingers. Yes, fold your 6 fingers. 6 fingers को fold कर लीजिए. How many fingers you are left with? Very good, you are left with 3 fingers. So that means your answer is 3. So you are left with 3 bananas. Similarly, you can see here there are 5 fishes. There are 2 fishes. What is the sum? Means this is basically the done part. 5 plus 2, ये हम ऑलरेडी ये भी हम करते हैं, बट इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 5 plus 2 is not a big or difficult task for you. You can take out 5 fingers. Okay, you are so quick, very good. Now
टेक आउट 2 more fingers. अब 2 fingers और निकालिए. Well done. Now you count the total number of fingers. अब सारी fingers को एक साथ count करेंगे, कितना आंसर आया? The answer is 7. Correct. So the answer is 7. You can see there are 3 rabbits. 3 more come. ठीक है, 3 rabbits एक पार्क में हैं ऑलरेडी और 3 और आ गए उनके फ्रेंड्स. नाउ हाउ मेनी इन ऑल मीन्स इन ऑल टोटल कितने हो गए? सो यू विल राइट, कितने थे हमारे पास? 3. सो यू विल राइट 3 हियर. कितने और आ गए? +3. इन ऑल है, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड +3. सो कितने हो गए टोटल? 6. वेरी गुड. So the total number of rabbits are 6 now. So this is how we are solving story sums. So rest of the sums were for your homework. So I think and I hope you have done it. If you have not done it till date, you please complete it, because if you will not complete it, then you will face problem in understanding our further topics, which is a step above than the previous one. अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको आगे का काम समझने में, आगे के टॉपिक समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि वो एक स्टेप ज़्यादा है जो हमने ये किया, इससे थोड़े से और डिफिकल्ट होंगे. सो आई नो that you are very much aware of the topics, but you need to solve them for your practice. Okay, now let's move ahead for our today's topic. What is today's revision? So today we will be revising addition and subtraction with the concept of zero. So students, we were already done with addition and subtraction. We are already done with addition and subtraction. हम addition और subtraction already कर चुके हैं. But what is the concept of zero? अब zero का concept क्या है? So basically this is, हम ये पढ़ेंगे कि जीरो को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है. तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि एडिशन में हम ऐड करेंगे ज़ीरो तो क्या आंसर आते हैं, अगर हम सब्ट्रैक्शन में माइनस करते हैं ज़ीरो तो क्या आंसर रहते हैं हमारे. सो इट इज़ द आंसर और द कंसेप्ट विच इज़ फॉलोड इन एवरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सम. ठीक है, वो सब में फॉलो होता है. What do we mean by it? Let's discuss the questions together now. अब इसका मतलब क्या होता है पहले हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, then only will be able to understand or will be able to solve questions. जब तक आप नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. So first of all we will learn for addition and then for subtraction. Let's start. Answer to all the questions we have. So the concept of zero basically starts from zero itself. कंसेप्ट जो जीरो का है वो जीरो से ही स्टार्ट होता है. जीरो जीरो क्या है? एक नंबर, एक डिजिट है जो कि जिसकी कोई भी वैल्यू हम नहीं काउंट करते. इफ इट इज रिटन बिफोर अ नंबर, अगर किसी नंबर के पहले लिखा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, पर उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है अगर वो किसी नंबर के बाद में लिखा है, आफ्टर में लिखा है. दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ जीरो. This is the number in which we add any number, it remains the same. मतलब कि ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसी डिजिट है कि अगर हम इसमें कुछ भी ऐड करते हैं तो वो जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो सेम रहता है. आंसर हमारा वही आता है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं. कैसे आता है ये हमें सोचने की जरूरत है. सो फॉर दैट वी विल बी सॉल्विंग वन एक्सरसाइज ऑल्सो. और इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी नंबर इट विल रिमेन द सेम. अगर हम कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी वो नंबर सेम रहता है. अब वो कैसे होता है? देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग टू, दैट हाउ it happens if we are subtracting or adding, the number remain the same. Why? How? So basically you understand the concept of zero. Zero क्या होता है? So if you are having 10 pencils, suppose, okay, we are talking about minus. Okay, so if you are having 10 pencils and I am taking 0 pencils from you, मैं आपसे 0 pencils मांग रही हूँ, so आपके पास कितनी बचेंगी? Think about it and then answer. Yes,
Please go on. If your answer is also wrong, I don't mind wrong answers, but your response should be there. Okay, very good. So आपके पास तो 10 की 10 ही हुई, बिकॉज मैंने तो आपसे 0 लिया है. ओके, अब आपके पास 10 पेंसिल्स हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट एडिशन. ऑलराइट, अब आपके पास 10 पेंसिल्स हैं और मैंने आपको 0 पेंसिल और दे दी. सो क्या अब आपके पास 11 हो गई या 9 हो गई? नो, आपके पास अभी भी 10 ही है. क्यों 10 है अभी भी? क्योंकि जब आपने देखा कि मैंने आपको 0 दिया है, तो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना. देयर इज नो वैल्यू फॉर 0, राइट? सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग इट, है ना. तो सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे. एड 2 + 0. यू कैन सी हियर 2 + 0. सो 2 में हमने 0 को जब प्लस किया तो 2 में हमने 0 और लगा दिया, तो वो क्या बना? 2 ही बनेगा. अब अगर हमने 0 में भी 6 ऐड किया तो वो 6 आ जाएगा. क्यों आ जाएगा 6? क्योंकि आप इसे उल्टा करके पढ़ोगे तो 6 में आप 0 को ऐड कर रहे हो, है ना. तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं था और मैंने आपको 6 पेंसिल दे दी, तो आपका आंसर क्या हुआ? 6. अगर आपके पास 2 पेंसिल्स थी और मैंने आपको 0 दी, तो आपका आंसर क्या रहा? 2, राइट? We can now see for example for subtraction. This is the example for subtraction. 3 - 0. अब अगर मैंने 3 आपके पास पेंसिल्स थी और मैंने आपसे 0 ली, तो आपके पास अभी भी 3 पेंसिल्स ही हैं. ठीक है. आपके पास 7 थी और मैंने आपसे 0 ली, तब भी आपके पास 7 ही है, राइट? So this is basically the concept of 0. Now we'll solve one exercise with help of this. Let us have a look at the exercise, जिससे हमें पता चलेगा कि हम क्या करना चाहते हैं. Let's learn concept of 0 now in addition. So this is addition format of 0 concept. 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0. So आप ऐसे इसे solve कर सकते हैं that if you having 1 toffee and I am giving you 0, मैम ने आपको 0 और दी, तो आपके पास कितनी रही? 1 ही रहेगी. यू आर हैविंग 3 चॉकलेट्स और मैम ने आपको 0 दे दी, तो आपके पास अभी भी 3 ही रहेंगी. सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व, राइट? ओके, आई डोंट थिंक सो दिस इज अ harder one or this is a difficult topic according to you, because the concept of 0 is very easy. 0 में कुछ भी ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 0 की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है ना. सो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ 0. Also we will look for the concept of 0 for subtraction. अब हम subtraction के लिए भी देखेंगे कि क्या concept follow किया जाता है. Subtracting. Now if we are subtracting from 0, ये क्या है? Okay, so this is a bit different. जो मैंने आपके लिए एक डिजाइन करी है वर्कशीट, this is a bit different. आप देखेंगे 2 है और आपसे मैंने 2 ले लिया. What does that mean? If you are having 2 pencils and I am asking you to give me 2 pencils. आपके पास 2 pencils हैं और मैंने आपसे वही बोला कि आप मुझे 2 pencils दे दो, तो आपके पास कितनी बचेंगी? 0. तो this is another concept of 0. If we are subtracting same number, मतलब कि सेम नंबर्स हैं ये दोनों और इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा. यू सी, सारे सेम नंबर्स हैं. आपके पास 5 टॉफीज हैं, मैंने 5 की 5 ले ली, तो आपके पास कितनी बची? 0. और वी कैन से इफ यू आर हैविंग वी कैन से एनीथिंग, 9 बुक्स और 9 की 9 बुक्स आपकी मैम ने कलेक्ट कर ली, यू आर लेफ्ट विथ 0. यू आर हैविंग 2 एप्पल्स, 2 की 2 एप्पल्स आपने खा लिए, तो अब आपके पास कितने बचे? 0. So this is another concept and a very important one, कि अगर हम सेम नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर हमारा हमेशा 0 रहता है.
वो क्यों रहता है ये भी मैम ने आपको एक्सप्लेन किया है. आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट टू यू that if you are you are having two apples and you are eating two apples. Now how many apples you are left with? आपके पास 2 थे, आपने दोनों खा लिए. You are left with 0, right? You are having 4 chocolates and you ate 2 chocolates, or I can say 4 chocolates. You were having 4 and you ate 4. Now what? You are left with 0. अब आपके पास 0 है जब तक आप और नहीं लेके आते, right? So you will be solving this exercise too. I know you must be knowing the answers, but then you have to anyhow solve this in your copy. Let's move to a section which is not liked by you, which is your homework section. So I know you guys do not like homework, but this homework is really important because as much as you practice, you will score the highest marks. Like if you are practicing and your friend is not practicing, so definitely you are going to score more marks than him or her. है ना? अगर आप प्रैक्टिस करते हो और आपका फ्रेंड कहता है अरे मैं तो नहीं करता हूँ होमवर्क, लेट इट बी, सो डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट. उसका आप रिजल्ट देखोगे जब आपके एग्जाम्स होंगे, तो मार्क्स यू विल सी द रिजल्ट इन द फॉर्मेट ऑफ मार्क्स. आपको मार्क्स में पता चलेगा. वो कहते हैं कि मैं तो ज़्यादा नहीं करता, बट देखिएगा यू विल स्कोर मोर. देन दे विल कम टू यू, अरे यार तेरे मार्क्स ज़्यादा आए हैं एंड माई मार्क्स आर सो लेस, वाई? देन यू कैन टेल देम, आई यूज टू फॉलो माई टीचर एंड शी यूज टू से दैट द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू स्कोर. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, राइट? सो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस. सॉल्व द गिवन वर्कशीट इन द वीडियो इन योर कॉपी. जो आपकी वर्कशीट मैंने आपको 2 दी है, एक एडिशन की और एक सब्ट्रैक्शन की. यू हैव टू सॉल्व दिस इन योर कॉपी. एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली. हैव अ नाइस डे.